the HUR 105 variety, rice variety, HUR 105. This variety belongs to medium maturity group, and yielding capacity is almost 60 quintal, around 60 quintal per hectare. Before the notification and release of the variety, it is essential to have the dust characteristics of the variety. It is essential. So descriptor is essential. On that basis, we can differentiate among the varieties. Suppose here is the 105 and another variety is HUR 917. So how we can differentiate between those two varieties? How to differentiate? You know, this is the rice variety HUR 105 and their flag leaf. This is the flag leaf just below the panicle. Just below the panicle. Here is the panicle. Just below the panicle, this is the flag leaf. This one is the flag leaf. Flag leaf. So here the characteristics of special characteristics of this variety is just panicle is above the flag leaf. You can see here the panicle is just above the flag leaf. This is the special characteristics of this variety. This descriptor we can differentiate as this is the HUR 105. Suppose we have descriptor and variety is released, then how to produce their nucleus seed, basic seed. In fact, the nucleus and basic seed, it comes under the domain of the breeder, respective breeder who develop the variety. So this is the responsibility of the respective breeder to maintain the genetic purity of the variety which have been developed by institute under the specific under the particularly supervision of the breeder. So you can select the first how to produce the nucleus seed. First most important step is to select the single panicle. This is the panicle. Just to select the single panicle. On the basis of the descriptor, true and true type plants are identified. After identification, you select the panicle. This is the panicle. Just you have to select the panicle to grow the nucleus seed in the next season. Suppose this is the panicle. Just you have to select it, and at the nursery, without threshing the grain, you have put the whole panicle just in such a way, whole panicle to the nursery plot, whole panicle to the nursery plot. Why? इसलिए कि अगर बारिश हो तो ये पेनिकल से ग्रेन जो है मूव नहीं करे, पेनिकल के साथ मूव करेगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, मिक्सिंग का कोई चांस नहीं होगा जो है। उसके बाद करते क्या है कि इस पेनिकल से आप ये देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट मोर देन 100 ग्रेन्स आर देयर. So 100 grains are there, and then 100 seedling will appear from the single panicle in the nursery field. So in the nursery field, what happened? Just in the nursery field, just you pull out the whole seedling from one panicle and make a one bundle. एक हमने जो है पूरे इस जितने पेनिकल से अगर 100 राइस की सीडलिंग आया है तो सारे को हमने जो है एक गट्ठर बना लिया, एक बंडल बना लिया जो है, और इस बंडल को हम करते क्या हैं फिर नेक्स्ट सीजन में 5 into 5 मीटर का एक प्लॉट बनाते हैं. 5 मीटर मीन्स यू नो द डिस्टेंस ऑफ द राइस इज 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो 20 सेंटीमीटर. सो हियर यू कैन सी द 2 row, 1 row and 2 row. Row length is 5 meter. Row length is 5 meter. Here row length is 5 meter. So in 5 meter, in 1 meter, अगर हम डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर देते हैं तो 5 प्लांट विल बी अकोमोडेट. सो इन 5 मीटर प्लॉट, इन 5 मीटर लेंथ 25 प्लांट विल बी अकोमोडेट. सो इन 1 row. Likewise in second row 25 plant again. So these paired row, 1 and second row, are derived from the same panicle. This is the panicle. जैसे हमने कहा कि आप नर्सरी में पूरे पेनिकल को लगाए हैं, पेनिकल से ही पूरे होल सीडलिंग को उखाड़ लिया, उखाड़ करके आप बंडल बनाए, बंडल बनाने के बाद यहाँ पे आप जो है इसको रख दिए. इससे जो है एक ही बंडल से आप दो जो है पेयर्ड रो बनाए. दोनों पेयर्ड रो के लिए केवल 50 प्लांट की हमको ज़रूरत है. सिंगल हिल प्लांटेशन करते हैं, 50 केवल प्लांट की आवश्यकता है. तो इस तरह हमने जो है ये पेयर्ड रो जो है 5 मीटर के लेंथ में किया. लाइकवाइज इन सेकेंड पेनिकल, दूसरे पेनिकल से फिर जो है अगर हम सेकेंड पेनिकल को लिए हैं
तो दूसरे पेनिकल से भी हम जो है, ये जो सेकेंड पेनिकल है, इससे भी जो हमने इस तरह से पेयर्ड रो जो है प्लांटेशन किया। और मुझे ये पता है इसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कहा कि इसका जो फ्लैग लीफ है जो है, ये फ्लैग लीफ आप देख रहे हैं, जो है बाली देख रहे हैं यहाँ, बाली ऊपर की तरफ होता है इसका जो है। लेकिन वही दूसरी वैरायटी देखिए, बालियाँ जो है नीचे की तरफ हैं जो है, इसकी बालियाँ जो है ऊपर की तरफ है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ऑन दैट बेसिस यू कैन सेलेक्ट द ट्रू एंड ट्रू टाइप ऑफ प्लांट, एंड फ्रॉम दैट प्लांट यू हैव टू सेलेक्ट द सिंगल पेनिकल, and from the single panicle you have to plant in the nursery field, and from the nursery field just uproot the whole plant from a single panicle and make it a bundle to transplant a paired row. अब हमने यही बताया कि इस पेनिकल को हमने सेलेक्ट किया, इस पेनिकल से पेयर्ड रो हमने इस तरह से ट्रांसप्लांट किया। दूसरे पेनिकल से फिर हमने जो है पेनिकल टू रो ट्रांसप्लांट किया, इसी को हम बोलते हैं पेनिकल टू रो। इस तरह से जेनेटिक प्योरिटी को हम मेंटेन करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर किसी भी पेयर्ड रो में ऑफ टाइप, सिंगल ऑफ टाइप प्लांट दिखता है न्यूक्लियस सीड के केस में, तो हम करते क्या है कि होल पेयर्ड रो, ये जो दोनों पेयर्ड रो हैं, कोई प्लांट हमको यहाँ पर अगर ऑफ टाइप मिल गया, किसी दूसरी वैरायटी की मिल गया, तो इसको हम पूरे कट कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, दोनों रो को हम हटा देते हैं। हटाने का पर्पज़ ये होता है कि हमारी रिजिडिटी है जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन करना, क्वालिटी सीड प्रोड्यूस करना, बेसिक सीड प्रोड्यूस करना, क्योंकि ये सोर्स होता है। आप ये देखिए, अगर कोई ऑफ टाइप प्लांट हमको अगर यहाँ पे मिला हुआ है, उसको अगर हम नहीं हटाते हैं, तो एक पेनिकल में अगर हम 100 दाने एज्यूम करते हैं, अगर 20 इफेक्टिव टिलर हैं, तो एक से तो हमारे पास 2000 दाने, यानी 2000 प्लांट जो हमें ऑफ टाइप दिखाई देंगे। इसलिए हम करते क्या हैं कि होल पूरे दोनों पेड़ रो को हटा देते हैं। तो हमको यहाँ पे सिलेक्शन जो है बहुत अच्छा करना होता है, रिगरस सिलेक्शन। तो इसीलिए हम जब 5x5 का 5 मीटर लंबा और 5 मीटर जो चौड़े का हमने प्लॉट बनाते हैं, इसलिए कि मॉनिटर आसानी से कर सकेगा कि कोई ऑफ टाइप प्लांट तो नहीं दिखाई दे रहा है। ऑफ टाइप प्लांट दिखाई देता है अगर किसी रो के बीच में प्रेजेंट है, तो हम ये मानते हैं कि अगर सिंगल पेनिकल से डिराइव किया हुआ है, इट मीन्स दिस इज द ऑफ टाइप ड्यू टू द जेनेटिक चेंजेज, इट मे बी ड्यू टू म्यूटेशन रदर टू मैकेनिकल मिक्सचर। ये म्यूटेशन के थ्रू भी आ सकता है। नेक्स्ट जनरेशन में जो है ये फिर हमारे सीड को डाइल्यूट कर देगा, सीड की क्वालिटी को डिटोरिएट करेगा, जेनेटिक प्योरिटी हमारी हैम्पर होगी। तो हमें बहुत ही दृढ़तापूर्वक सिलेक्शन करना है कि सारे रो को हटा देना है। इस तरह से हम न्यूक्लियस सीड जब प्रोड्यूस कर लिए 5 मीटर 5 के ब्लॉक में, वो तो उस सारे सीड को एक जगह हम जो है थ्रेश करते हैं और उसका एक जो बल्क करते हैं, ये न्यूक्लियस सीड बल्किंग किया हुआ न्यूक्लियस सीड हुआ, जो कि सोर्स होता है ब्रीडर के लिए। लेकिन एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी अगेन टू मेक ए न्यूक्लियस सीड ऑफ दिस पर्टिकुलर वैरायटी टू सेलेक्ट द सिंगल पेनिकल, at least 50 to 100 penicles should be selected on the basis of the requirement of the nucleus seed or breeder seed. How to make a nucleus seed just I have described here, and then how much quantity should be there. Quantity depend upon the indent of the variety कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ब्रीडर सीड का कितना इंडेंट है, उसके आधार पर जो हम न्यूक्लियस सीड निर्धारित करते हैं कि कितनी मात्रा में हमें प्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये हम बात कर रहे थे न्यूक्लियस सीड में कि इसकी जो है मॉनिटरिंग जो है हमको करके रखनी पड़ती है, राइट फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग हर स्टेज पे। और ये सर्टिफिकेट ब्रीडर देता है कि हमारे सुपरविजन में, स्ट्रिक्टली सुपरविजन ऑफ द रिस्पेक्टिव ब्रीडर, ये हमारी जो है न्यूक्लियस सीड प्रोड्यूस की गई है। दिस इज 100% जेनेटिकली प्योर, 100% इसकी जेनेटिक प्योरिटी है, जेनरेशन कैपेसिटी इसकी मोर देन 99% है, इसमें किसी तरह का कोई ऑफ टाइप नहीं है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स अपॉन द ब्रीडर, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ब्रीडर के ऊपर फिक्स है। तो इस तरह से हम लोग न्यूक्लियस सीड बनाते हैं।